आज के इस लेक्चर के माध्यम से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पीरियड को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसका जो IS कोड है दैट इज IS 2386 पार्ट 3 है। एंड वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी। वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ratio of density of substance density of substance to the density of water at 4 degree centigrade. It is denoted by G and is ratio of density of substance density of water and it is a dimensionless unit. इसका कोई यूनिट नहीं होता, it is a dimensionless. स्पेसिफिक ग्रेविटी का dimensionless. ये जब हम किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का हवा में भार लेते हैं सेफ्टी और उसको यदि हम पानी में इमर्स करते हैं तो इसके भार में कमी महसूस होती है। वी फाइंड दैट देयर इज रिडक्शन इन वेट। एक इसके लिए होता है जो कि बॉयंट फोर्स नीचे से उस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, उसके इसलिए उसमें वेट का रिडक्शन हम लोग महसूस करते हैं। तो ये जो वेट का रिडक्शन होता है, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और जितना बॉयंट फोर्स लगेगा वही उसका अपरेंट वेट हो जाता है। नाउ दिस बॉयंट फोर्स जो आर्किमिडीज ने दिया, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो आर्किमिडीज ने दिया कि व्हेन वी एक्सपीरियंस रिडक्शन इन द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर और लिक्विड, जितना वो रिप्लेस करता है उतना ही उसका रिडक्शन इन वेट होता है। तो वी कैन से कि बॉयंट फोर्स इज ए weight of liquid or in this case weight of water displaced by object. So how much water will be displaced by object we can find out when this is the body and the buoyant force is acting from the water. So weight of the object, we know the weight of object, weight of the object minus this buoyant force. Weight of the object will be this and it will be with the buoyant force it will be reduced. So जो apparent weight होगा it will be less by the buoyant force. So weight of the object minus buoyant force will be equal to apparent weight of the object, which we measure when we submerge any body in the water. We experience this weight, we find out. Now this जो buoyant force है that will be equal to the weight of water displaced by the object. जितना water displace करेगी उतना ही उसका buoyant force ऊपर लग रहा होगा. So we can say if we denote W object minus buoyant force is equal to W apparent. So buoyant force will be equal to W weight of the object minus apparent weight. Now this buoyant force is equal to M into G, that is weight of the water displaced. We can say here weight of the water displaced, displaced. So this will be W is equal to M into G, and we know the density of water. Density of water is equal to mass of water divided by volume of water. So mass of water in this case will be equal to density of water into VW. So this we can write buoyant force is equal to buoyant force will be equal to, we replace this M, Y
density of water into volume of water into G is equal to weight of the object and weight of the apparent weight which we measure. So we can find out volume of water will be displaced will be equal to upon density of water into G. So this will be the volume of water will be displaced by the body, and it is equal to the volume of the object. Volume of the object. So we can find out the density. If we know the density of the object, we can find out the weight of the object, or we know the volume of water. So this 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 will help us in getting. If we know the mass of the object and we know the volume of the object, by this we can find out the density of the object. So it is very important derivation for finding out the volume of any material which is in not in regular shape. We can find out with the specific gravity. And another thing is, if the density of the object will be more the density of water, it will submerge in the water. If it is less, it will float up the water. Like in the case of we see the ice or any floating object, it floats because of this only. When the density of object is greater than density of water, it will submerge, otherwise it will float. So इसके लिए जो तीन चीजें जरूरत होती है, एक तो हमको लगता है कि जो सबमर्ज्ड वेट है दैट इज ए, जिसे हम लोग डब्ल्यू देखा वहां पे, वो कितना है. व्हेन वी सबमर्ज दैट एग्रीगेट, उसका वेट कितना है, दैट इज रिक्वायरमेंट. तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एग्रीगेट को पानी में सबमर्ज कर लेते हैं. वी नोट डाउन A1 द वेट ऑफ सबमर्ज वेट, एंड देन बाद में फिर जो वायर बकेट है, बास्केट है, इसको फिर से हम लोग समझ करके इसका निकाल लेते हैं. तो A1 A2 कर देते हैं. तो वी फाइंड द वेट. देन वी अंदर थिंग इज रिक्वायर्ड बी द वेट ऑफ इन ग्राम ऑफ द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट. जो इस एग्रीगेट को लेकर के इसको सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कर लेते हैं. तो देन वी मेजर द वेट बी, एंड दिस इज weight in a gram of oven dried aggregate. So ये तीन पैरामीटर बहुत जरूरी है, A, B and C, to find out the specific gravity. इसके लिए जो हम लोगों का इक्विपमेंट का जरूरत होता है, जो इसके लिए ऑपरेटर्स लगता है, उसमें हम लोगों को एक बैलेंस लगेगा 3 kg के आसपास होना चाहिए और 0.5 ग्राम की एक्यूरेसी वाला होना चाहिए. एक हम लोगों को वायर बास्केट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग एक रख करके इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. एक वाटर टाइट कंटेनर की जरूरत पड़ेगी. एक 1 mm थिन वायर की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग इसको हैंग कर सके. इसके अलावा एक 10 mm साइज की सीप, जिससे हम लोग, क्योंकि जो हम लोग अभी कोर्स एग्रीगेट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं मेथड 1 में, एग्रीगेट साइज लार्जर देन 10 mm की कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग 10 mm सीप की जरूरत पड़ेगी. एक अच्छा एब्जॉर्बेंट क्लॉथ की जरूरत पड़ती है, जिससे हम लोग सैचुरेटेड सरफेस ड्राई मटेरियल को करेंगे. जो एग्रीगेट हम निकालेंगे पानी में से, उसको हम लोग सैचुरेटेड सरफेस ड्राई इसी क्लॉथ की मदद से करेंगे. ये जनरली 75 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की 2 क्लॉथ होनी चाहिए. एक में पहले करें, उसके बाद में दोबारा. सो ये 2 नंबर की जरूरत पड़ती है. देन वायर मेश बास्केट, इसकी ओपनिंग 6.3 mm से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. एक वे बैलेंस फॉर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द एग्रीगेट. इसके अलावा वाटर टैंक, जो हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों को मर्ज करना है, एक ओवन की जरूरत पड़ेगी टू गेट द ड्राई वेट. तो हम लोग इसमें जो हम लोग इसका IS 2430 में सैंपलिंग कितना लेना चाहिए कोर्स एग्रीगेट के किसी काम के लिए, किसी टेस्ट के लिए, तो उसमें 10 kg का मिनिमम लेना चाहिए. फिर रेफिल की मदद से इसकी क्वार्टरिंग कर लेना चाहिए, और लगभग 2 kg के आसपास मटेरियल हम लोगों को ले लेना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो. तो इस 2 kg मटेरियल को रिफिल की मदद से हम लोग क्वार्टरिंग कर लेते हैं, एंड वी टेक 2 kg फॉर द फर्दर टेस्टिंग. फिर इसको हम लोग 10 mm की जो सीव है, क्योंकि हम लोग लार्जर साइज एंड 10 mm की लिए कर रहे हैं, जो उसके छोटे साइज में निकल जाए
उसको हम लोगों को टेनर स्वीप में स्वीप कर लेना चाहिए, सो दैट द पार्टिकल साइज लार्जर देन दिस। इसके ऊपर हम 19 mm की भी लगा दें तो और अच्छी बात रहेगी, तो जो साइज का ग्रेड हम लोग को चाहिए वही यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसको डस्ट रिमूव करने के लिए अच्छे से वॉश करते हैं इन ए वाटर। वी शुड क्लीन इट प्रॉपरली सो दैट जो भी उसके डस्ट वगैरह लगी है या जो भी डिलेटेरियस मटेरियल है वो निकल जाए। देन यहाँ दो चीज कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में 24 घंटे के लिए वी कैन कीप इन द बकेट सेल्फ। ये डिस्टिल वाटर में लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर पानी रहे और इसको हम लोग 24 घंटे के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम लोग इसको मेंटेन करें फॉर द 24 आवर्स। और वी कैन डू अनदर मेथड कि हम लोग जो वायर बास्केट है उसमें ही ले करके और वन जोल्ट पर सेकंड के हिसाब से इसको 25 बार हम लोग इसको करें, जो ताकि इंट्रैप्ट एयर उसमें से निकल जाए। इसको 24 घंटे के लिए हम लोग उसी डिस्टिल वाटर में जो हमारा एयर वाटर टाइट कंटेनर है उसमें छोड़ दें। उसके बाद फिर इसको हम लोग फिर हैंगर में हैंग करके और हम लोग इसका सबमर्ज वेट ए निकाल दें। तो इसका A1 A2 जैसे हम लोग कहा पहले, A1 वेट ऑफ एग्रीगेट और प्लस एग्रीगेट प्लस बास्केट। बाद में केवल बास्केट का वेट लेकर के A1 माइनस A2 कर लेंगे तो वी गेट वैल्यू ऑफ वेट। तो सबमर्ज वेट ऑफ दी सब्सटेंस, पानी में उसके वेट में कितना रिडक्शन हुआ वो हम लोगों को पता लग जाता है। देयर आफ्टर जैसे कि हम लोग ये काम करना सरफेस ड्राई कंडीशन जो सरफेस पे है, कोई भी वाटर न लगा रहे, इस कंडीशन में हम लोगों को इसको सरफेस जो सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन करना है, इसको अपने ट्रैवल से अच्छे से करके ताकि कोई भी जो एक्सटर्नल वाटर है ये वाटर पूरा निकल जाए और केवल जो इसके पोर्स में है यही वाटर उसमें रहे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज ओवन ड्राई एंड दिस इज सेचुरेटेड, जिसमें केवल पोर्स में रह जाते हैं। जो सरफेस वाटर है, वेट सरफेस वाटर है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। दिस इज द कंडीशन वी डू इट विद द टॉवल टू मेक द जो हमारा सबमर्ज हम लोगों ने गेट बाहर निकाला है, उसके बाद इसको सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में हम लोग करते हैं, जेंटली सरफेस ड्राई विद द क्लॉथ। फिर उसका हम लोग वेट डिटरमाइन कर लेते हैं, दैट वेट बी जो हमारा SSD कंडीशन सेचुरेटेड सरफेस ड्राई मटेरियल है, उसका हम लोग वेट कर लेते हैं टू दी एक्यूरेसी ऑफ 0.5 ग्राम और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज B2534.5। हम लोगों ने जो इसका वेट रिकॉर्ड किया दैट हैज कम 2534.25 ग्राम। Once after recording this SSD weight, we place this material into the oven at 110 degree centigrade plus minus 5 degree centigrade for 24 आवर प्लस माइनस हाफ आवर के लिए हम लोग इसको ओवन में रख करके आफ्टर 24 आवर we record the weight of dried sample, that is C. It has come 2511.1. For example, it has come like this. So with the help of A, B and C, we find out the specific gravity of this material. So mass of oven dried sample C, mass of saturated surface dry sample SSD B, and mass of test sample A. The weight of dried sample 2511.1 ग्राम, B जो हमारा SSD कंडीशन में है उसका 2534.5 ग्राम और जो सबमर्ज कंडीशन में है वो हमारा 1535.6 ग्राम आया। तो जो इस अपरेंट है C/C minus A. So that the value of dried sample is 2511.1, C is 2511.1 and minus 1535.6. This also it has come 2.57. We can calculate it here. 2511.1 divided by
bracket 2511.1 minus 1535.6 bracket close. So it has come 2.574. So we take 2.57. GSA, apparent specific gravity. If it is in GSA, apparent specific gravity. If it is in GSB, bulk specific gravity, like this it used to be read. And water absorption is 100 B minus C upon C. So B is 2534.5, C is 2511.1 gram, and divided by 2511.1. So it has come 0.93%. It is in percent. So for the minimum two sample हम लोगों करके उसका एवरेज निकाल लेना चाहिए. Then that will be the specific gravity of the material. Thank you.